This is our 13th lecture, and in this lecture we will learn about few more topics of constructor and destructor. Here is the detail in which we cover multiple constructor in a class, constructors with default arguments, dynamic initialization of objects within the constructor, dynamic constructor and destructors. So we'll start with the first topic, multiple constructor in a class. Now what do you mean by multiple constructor in a class? That means a class declaration is having a multiple constructor. One of the constructor can be a default constructor, another one is the parameterized constructor, another one is a copy constructor. Okay, so here I have declared two data member as a private, that is character array nm and age as an integer. Okay. Now in the public section, what I have done, I have declared two constructor ABC. Why ABC? Because the class name is ABC. Okay. So first one is ABC in a bracket, name is equal to default and age is equal to 20. So if while creating object of ABC class, if I don't mention the parameters related to nm and age, it will by default call default constructor, that is ABC, name is equal to default and age is equal to 20. The next one is ABC, character X array and integer Y. Okay, so for default constructor, whatever is the definition of the constructor I have mentioned within the class, and for the parameterized constructor I will write the statement body for this parameterized constructor outside the class declaration. Look at here, ABC is equal ABC colon ABC, character array of name X, integer Y. Okay, so here what I have done, using strcpy. strcpy will come from the library seed string that I have already included. That is the second line of this code. Okay, so whatever is the name which is in X, that you are going to copy into the nm variable. Okay, nm data member and age is equal to Y. So this way I am initializing the value of nm and age. Here what I have done, I have written another function set values, where I am getting the values from the keyboard using the cin operator. Okay, so set value functions can be called anytime. Okay, constructor will be called at the time of object creation. And set value, what is the difference between this ABC parameterized constructor, default constructor and set values? Set values is basically used whenever you want object name dot set values, that is possible. But the constructor will be called at the time of creation of the object. And the next function is display. So here I have displayed name and age of a particular object. So I have in a main, integer main, what I have done, I have declared one object A1 of class ABC and I have called A1.display. So what it will display? A1 जब create किया है ABC का, तब मैंने कुछ pass नहीं किया है, तो कौन सा वाला constructor call होगा? Default constructor. So default constructor जो है उसके हिसाब से name is equal to default and age is equal to 20 जो है वो A1 object से assign हो जाएगा. So जैसे ही मैंने display किया, तो it will display default and 20 onto the console. ठीक है? Next is a1.setValues and a1.display. That means what? Now it will call a1.setValue function call होगा. तो keyboard से मैं जो भी input लूंगी name और age के लिए, that will be assigned to the nm data member and age data member, and then it will be displayed. Here I have entered ABC and age 30. Okay, so that accordingly it will display name and age. Second one is ABC, A2 is equal to ABC, computer as a first parameter and 20,000 as a second parameter. That means it is a explicit call of constructor. And which type of constructor? You are passing some values. That means it will be find the appropriate constructor where constructor is having two parameters. First one is character array, second one is integer value. So it will call which constructor?
parameterized constructor, and with the help of that it will assign computer as a name, okay, with the help of strcpy, and 20,000 to the age. Okay, fine. So a2 dot display, so it will display like this. Okay, so here we execute that program. मल्टीपल कंस्ट्रक्टर देखो यहाँ पर है पूरा का ऐसा ही ऐसा, जैसे यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है माय नेम एंड एज इज 20. ओके, अभी मैं इसको रन करती हूँ. तो जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? दिस डिफॉल्ट वन. ओके, एंड देन इट विल डिस्प्ले. कंपाइल, build and execute. देखो आ गया डिफॉल्ट 20. build and execute. देखो यहाँ पर अभी ये डिफॉल्ट और 20 आ गया. उसके बाद वो नेम पूछ रहा है, किसके रिलेटेड है वो a1 डॉट सेट वैल्यू लिखा है ना यहाँ पर, a1 डॉट सेट वैल्यू, उसके हिसाब से वो नेम और एज को पूछेगा. सो ABCD and the age is 35. So it will display ABCD and 35, and for A2 it will by default taking the parameters for a parameterized constructor, that is the computer, and 20,000, that it will display onto the screen. Okay, so this is all about. That means class can have a multiple constructor, and depending on the requirement, depending on the at the time of object creation, it will call accordingly respective constructor. Now the next topic is constructors with default arguments. It is possible to have a constructor with default arguments. Now it is talking about default arguments. It is not saying about default constructor. That means constructor में जो parameter pass करते हो उसमें भी default argument pass कर सकते हैं. Which I have default argument वाला हमने function का जो chapter किया था उसके अंदर मैंने ये cover किया था. It means that if the constructor is defined with n parameters, जैसे 3 parameters है, तो we can invoke or call it with less than n arguments specified in the call. तो डेमो देखोगे तो ज्यादा पता चलेगा. यहाँ पे डेमो में क्या किया है, 2 इंटीजर वैल्यू दी है x and y, ओके, एज अ प्राइवेट, एंड पब्लिक में देखो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी दैट मीन्स देयर इज नो पैरामीटर, सो x is equal to 0 and y is equal to 0. Now it is a parameterized constructor with a default argument. Now look at to this parameter list. Integer a is a regular variable, but for integer b I am assigning 20. Okay, so if while creating object of this demo, if I don't pass the second parameter value, it will by default take 20 as a value for the y. So x is equal to a and y is equal to b. Now display the value onto the screen, value of x and y. Now look at this integer main, demo d1 is equal to demo 10. Okay, so what it will call, अभी यहाँ पर ब्रैकेट में अगर कोई पैरामीटर नहीं होता तो डेमो का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 वो वाला कॉल होगा. तो लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू पास की है तो दूसरी ऑप्शनल है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें a की वैल्यू 10 मिलेगी और b का वैल्यू यहाँ पे पास नहीं किया है, हमने सेकेंड पैरामीटर ऑब्जेक्ट क्रिएशन में पास नहीं किया है. तो बाय डिफॉल्ट b का वैल्यू 20 लेगा तो y में 20 स्टोर करेगा, यानी x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20. ओके, तो डिस्प्ले किया तो देखो आउटपुट कैसा आ रहा है, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20. नाउ हियर demo d2 is equal to demo 30 40. Now what it will do, 30 will be assigned to the
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में a जो है उसको 30 मिलेगा और b को 40 मिलेगा। तो b का 20 जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा, मैंने यहाँ पे पास किया है b का वैल्यू। तो क्या करेगा, x में 30 आएगा और y में 40 आएगा। एंड देन इफ आई ट्राई टू डिस्प्ले वैल्यूज, इट विल डिस्प्ले ऑन टू द स्क्रीन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 30 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 40। ओके, सो विल एग्जीक्यूट दिस डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। देखो मैंने यहाँ पे दिया है। Okay, so this is the default, this is parameterized, then this is the display function. Okay, यहाँ पे मैंने सभी फंक्शन और कंस्ट्रक्टर का जो डेफिनेशन है, जो स्टेटमेंट बॉडी है सभी फंक्शंस का, कंस्ट्रक्टर का, फंक्शंस का, मैंने क्लास के अंदर ही इनसाइड द क्लास डिक्लेरेशन ही लिख दिया है। ठीक है, तो क्लास के बाहर कुछ नहीं है। So choice is your whether to write statement definition of any function within the class or outside the class. ओके, अगर स्टेटमेंट बॉडी 2 या 3 लाइन का है तो क्लास के अंदर लिखोगे तो चलेगा, लेकिन ज्यादा है तो क्लास के बाहर लिखो तो बेटर ऑप्शन है। देखो यहाँ पर 10 पास किया, तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, आपका ये वाले कंस्ट्रक्टर पे आएगा। तो 10 है तो वो a को मिलेगा, b के लिए कोई वैल्यू पास नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट विल टेक 20। ओके, एंड फॉर 30 and 40, 30 will be assigned to A and 40 will be assigned to B. So we will compile this, build it and execute. Look at this. 10, 20, D1 के वैल्यू, D1 के ऑब्जेक्ट में X और Y की वैल्यू 10 and 20 and D2 के ऑब्जेक्ट में X and Y की वैल्यू है 30 and 40. So next topic is dynamic initialization of objects. Now, what do you mean by this? The dynamic initialization object means to initialize the data members of a class while creating the object. But how? When we want to provide initial or default values to the data members while creating the object, we need to use dynamic initialization of object. When the initial values are provided during the runtime, that is called as dynamic initialization. यानी जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, तो अभी वो कंस्ट्रक्टर में डेटा मेंबर्स की वैल्यू जो है वो रन टाइम डिसाइड होगी। ठीक है, रन टाइम डिसाइड होगी, यानी आप कीबोर्ड से डेटा ले रहे हो, दैट मीन्स दैट इज नोन एज डायनामिक इनिशियलाइजेशन। आप स्टैटिक वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हो। अभी तक हम क्या करते थे, स्टैटिक वैल्यू असाइन करते थे। यहाँ पर क्या है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में नेम एंड एज था, जो मैंने नेम कंप्यूटर और 20,000 दे दिया था, ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ, असाइन हो गया था कंपाइल टाइम पे। अभी रन टाइम पे दोनों की वैल्यू मुझे डिसाइड करके एंटर करनी है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज डायनामिक इनिशियलाइजेशन। हियर यू कैन सी दिस, देयर इज अ क्लास स्टूडेंट and 2 private name data member, roll number and percentage. Okay, publicly I have cleared one constructor, and this constructor is a type of parameterized constructor because it is having 2 parameters, integer r, float p. R is roll number, p is for percentage, so r will be assigned to r number and p will be assigned to percentage. Now read values. रीड वैल्यूज में देखो दोनों आर नंबर और परसेंटेज की वैल्यू यूजर से ली है। देन आई हैव प्रिंटेड बोथ द वैल्यूज ऑनटू द कंसोल। नाउ इन द मेन आई हैव डिक्लेयर्ड टेम्पररी 2 वेरिएबल्स, इंटीजर रोल नंबर एंड फ्लोट परसेंटेज. These 2 variables are different from the class data members. Here I have entered roll number with the help of seeing, यानी कीबोर्ड से मैं जो एंटर करूंगी वो, उसके बाद परसेंटेज वो यूजर कीबोर्ड से एंटर करेगा. देन इट विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास विद नेम S1 एंड इन अ ब्रैकेट इट विल पास रोल नंबर जो हमने टेम्पररी वेरिएबल मेन में बनाया था वो, और परसेंटेज दोनों पास करेगा. ठीक है, तो वो दोनों डायनामिक इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होते हैं. दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो ये रोल नंबर जो है वो R को असाइन होगा कंस्ट्रक्टर में, और परसेंटेज जो है वो फ्लोट P को असाइन होगा. R और P R नंबर और परसेंटेज से असाइन हो जाएंगे. ठीक है, एंड देन आई हैव प्रिंटेड S1 डॉट प्रिंट एंड इट विल डिस्प्ले लाइक दिस. ओके, मैंने दोनों वैल्यू एंटर करवाई 10, 80. देन आफ्टर इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट द वैल्यूज आर रोल नंबर 10 एंड परसेंटेज 80.
तो उसका मैं आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर 2 डेटा मेंबर है, 1 कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। दिस इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। रीड फंक्शन इसलिए यूज किया है कि मीनवाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अगर आपको रोल नंबर और परसेंटेज की वैल्यू चेंज करनी है, सो दैट यू कैन कॉल दिस रीड फंक्शन एंड देन प्रिंट फंक्शन। सो टेम्पररी 2 वेरिएबल्स सीन करके दोनों की वैल्यू ली है एंड देन स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू रोल नंबर एंड परसेंटेज मैंने पास करके S1 नाम का स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। I will compile, build and execute. देखो यहाँ पर enter the roll number to initialize the object. roll number मैंने दिया 12 and enter the percentage to initialize the object. So percentage दिए मैंने 90. So उसने देखो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज प्रिंट किए। यानी जितनी भी बार रन करूंगी ऑब्जेक्ट S1 जो क्रिएट होगा उसकी वैल्यू, दोनों डेटा मेंबर की वैल्यू कब डिसाइड होगी, रन टाइम पे यूजर जो डालेगा वो वाला सेट होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। नाउ डायनेमिक कंस्ट्रक्टर इज व्हाट? When the allocation of memory is done dynamically using dynamic memory allocator new in a constructor, so it is known as dynamic constructor. अगर न्यू ऑपरेटर को यूज करके अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर ही डेटा मेंबर का साइज के बेस पे अगर उसको मेमोरी असाइन होती है, ओके, तो उसको बोलते हैं डायनामिक कंस्ट्रक्टर। By using this, we can dynamically initialize the objects. So these two, dynamic constructor and dynamic initialization objects, both are interconnectedly doing the same thing. Okay? यहाँ पर देखो थोड़ा कोड लंबा है तो मैंने उसको कोड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और बॉटम पार्ट में उसका आउटपुट दिखाया है। ओके, कैरेक्टर नेम, यहाँ पे एरे का साइज नहीं दिया है नेम का, देखो यहाँ पे स्टार ले लिया, यानी वो रन टाइम डिसाइड करेगा कि नेम का साइज कौन सा रहेगा। अगर एबीसी है तो 3 मेमोरी स्लॉट असाइन होंगे और कंप्यूटर है तो उसके हिसाब से मेमोरी स्लॉट असाइन होंगे। और इंटीजर लेंथ कंटेन्स द लेंथ ऑफ द नेम। नाउ दिस इज द फर्स्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट इज डायनेमिक। लेंथ इज इक्वल टू 0 करवाया और नेम इज इक्वल टू नेम कैरेक्टर लेंथ +1, यानी एक स्लॉट नेम को दे दिया बाय डिफॉल्ट। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मैं कोई वैल्यू पास नहीं करती हूँ तब ये वाला काम होगा। अभी डायनामिक कैरेक्टर *s, तो ये सेकेंड कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होगा, मैंने कोई एक स्ट्रिंग पास किया है, कोई नाम पास किया है, तो पहले मैं नाम का लेंथ फाइंड कर रही हूँ, strlen लेंथ इज इक्वल टू, ओके। तो यहाँ पर नेम इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, तो अभी मैंने एबीसी दिया है तो एबीसी का लेंथ क्या है 3, तो लेंथ में आ जाएगा 3। और C++ के अंदर अगर स्ट्रिंग का एरे बनाना है तो उसमें लेंथ +1 मेमोरी एलोकेशन होना चाहिए, दैट आई हैव ऑलरेडी कवर इन दी फर्स्ट सेकंड सेशन। नेम इज इक्वल टू नेम कैरेक्टर लेंथ +1। अभी नेम जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा, नेम को 4 कैरेक्टर स्टोर करने का स्पेस मिल जाएगा। देन आई एम गोइंग टू कॉपी यूजिंग दी strcpy फंक्शन नेम कॉमा s, तो मैंने s में जो भी डाला था abc डाला था तो abc नेम में आ जाएगा। देन आई हैव प्रिंटेड दी नेम with the number of characters with the help of strlen. Even you can now if you want to use length function, length data member to print the length of the name, that is also possible. Okay, now this one is the very important one. Now यहाँ पर क्या किया है, मैंने void join करके 2 ऑब्जेक्ट पास किए। किसके ऑब्जेक्ट पास किए हैं? डायनेमिक ऑब्जेक्ट। दिस constructor, this function will be done, what it will do, डायनेमिक ए ऑब्जेक्ट में जो नेम का लेंथ है प्लस जो नेम है और डायनेमिक बी के अंदर जो नेम है विथ लेंथ, उन दोनों को कंबाइन करके एक नई स्ट्रिंग बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए में फॉर एग्जांपल एबीसी है और डायनेमिक बी में PQR है, तो क्या करेगा, ए डॉट लेंथ लेगा, बी डॉट लेंथ लेगा, तो दोनों की लेंथ 3 है, तो लेंथ क्या हो जाएगी 6। तो नेम इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर लेंथ +1, तो अभी 7 करके नेम का मेमोरी स्लॉट असाइन हो जाएगा,
ठीक है। तो strcpy नेम में पहले क्या स्टोर किया, a डॉट नेम, देन str कॉन्कैट करके नेम में क्या डाला है, b डॉट नेम। क्यों कॉन्कैट यूज किया, अगर cpy यूज करते तो प्रीवियस वैल्यू जो a से स्टोर की थी उसको रिप्लेस करके b की वैल्यू रख देगा, तो लेकिन a के वैल्यू के साथ हमें b की कंबाइन करनी है, ज्वाइन करनी है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग strcat concatenation. So here you can see this character star first करके मैंने abc लिया, ठीक है। तो डायनामिक नेम वन में फर्स्ट पास किया, तो नेम वन डॉट शो करेगा तो इट क्या प्रिंट करेगा, abc एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज 3, ठीक है। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, नेम वन फर्स्ट में, ये सेकेंड कंस्ट्रक्टर जो दिया है वो वाला कॉल होगा। देन डायनामिक नेम टू टेक्नोलॉजी, तो नेम टू डॉट शो करके क्या किया, टेक्नोलॉजी जो है वो नेम को असाइन किया और लेंथ में उसकी लेंथ होगी 10, क्योंकि 10 कैरेक्टर्स है इसलिए। नाउ डायनामिक नेम्स 3 कंप्यूटर्स, तो उसके अकॉर्डिंगली ये कंप्यूटर्स एंड उसका जो लेंथ है वो 9 डिस्प्ले किया। आफ्टर दैट व्हाट आई हैव डन, डायनामिक s1 कॉमा s2, ठीक है। तो अभी s1 डॉट जॉइन नेम वन कॉमा नेम टू, नेम वन और टू क्या है, नेम वन में abc डाला है, नेम टू में क्या दिया है, टेक्नोलॉजी दिया है। तो s1 में ज्वाइन फंक्शन को कॉल करते हुए ये क्या करेगा, s1 के नेम में abc एंड टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके उसका नेम इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो abc टेक्नोलॉजी एंड द स्ट्रिंग लेंथ इज 30। आफ्टर दैट व्हाट आई हैव डन, अनदर ऑब्जेक्ट दैट इज s2 डॉट जॉइन s1 कॉमा नेम 3, तो s1 में क्या था, नेम 1 और 2 का कंबाइन करके जो नेम इनिशियलाइज हुआ था वो abc एंड टेक्नोलॉजी, नेम 3 में कंप्यूटर्स है तो वो दोनों को वापस s1 इज अ टाइप ऑफ डायनामिक क्लास, तो सामने s1 को कैच कौन करेगा, रेफरेंस ऑब्जेक्ट ऑफ डायनामिक क्लास दैट इज a, एंड नेम 3 को एक्सेस करेगा रेफरेंस ऑब्जेक्ट ऑफ डायनामिक क्लास एंड द नेम इज b, ठीक है। तो उसके बेसिस पे वो पूरा लॉजिक एग्जीक्यूट करके दोनों को कंबाइन करेगा, यानी abc टेक्नोलॉजी प्लस कंप्यूटर्स, तो दोनों को कॉन्कैट करते ही आउटपुट देखो लास्ट लाइन में आया है, abc टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग इज 22, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायनामिक कंस्ट्रक्टर। आई विल शो यू द एग्जीक्यूशन। देखो यहाँ पर फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, सेकेंड कंस्ट्रक्टर, देन शो किया है, ओके, एंड देन ज्वाइन का फंक्शन लिखा है, और यहाँ पर जैसे पिक abc के बदले मैंने dstc, तो क्या हुआ, 4 हुआ, तो नेम का एरे कैसे इनिशियलाइज होगा, 4 + 1, ओके, वॉट एवर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस 1, तो नेम 1 असाइन हो जाएगा। यहाँ पर s में क्या आएगा, dstc, तो लेंथ 4 आया, 4 + 1 5, तो नेम का स्लॉट्स कितना होगा 5, देन you are assigning whatever the value of s, that is dstc, that will be stored into the name, okay. Same way for the technology it will do, then computers it will do, and then it will join the objects using the join functions. So name 1 and name 2, name 1 will be assigned with the reference variable a of dynamic class, and name 2 will be assigned to the reference variable dynamic class, that is b, okay, and then it will get the length of both the objects, then creates a new name character array, length +1, and strcpy and cat. Compile, build and execute. देखो यहाँ dstc आया, देखो 4, then technology computers, dstc technology, then dstc technology computers, ठीक है। So this is the example, and the last topic is destructors, okay. So what do you mean by destructor? Destructor is a special class function which destroys the object as soon as the scope of the object ends. That means आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का, जैसे ही कोई पर्टिकुलर फंक्शन फिनिश हो जाता है, उसका स्कोप जो है वो एंड हो जाता है, तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट को जितनी भी मेमोरी असाइन होगी वो उसको फ्री कर देगा।
The syntax of destructor is same as that of the constructor. The class name is used for the name of the destructor with a tilde sign as a prefix to it. देखो यहाँ पर क्लास ए टिल्ड साइन यूज करके ए जो बनाया है दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्टर. एंड डिस्ट्रक्टर है तो वो ऑब्जेक्ट जब भी उसके स्कोप से बाहर जाता है तो उसको वो ऑब्जेक्ट को नलीफाई कर देता है, रिमूव कर देता है. So few things that you need to take care about the destructor. A destructor function is called automatically when the object goes out of the scope. डिस्ट्रक्टर को आपको खुद से कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जैसे ही स्कोप के बाहर गया वो ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देगा. इट विल बी कॉल्ड व्हेन द फंक्शन एंड्स. फंक्शन पूरा हो गया तो उसमें भी जितने ऑब्जेक्ट्स बनाया है मैंने वो उसको रिलीज कर देगा. प्रोग्राम एंड्स, जैसे मेन में बनाया है तो जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है रिटर्न 0 आएगा तो वो सभी ऑब्जेक्ट्स को जो भी मेमोरी असाइन हुई है, जो भी स्टेटमेंट्स हमने लिखे हैं डिस्ट्रक्टर में वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे. अ ब्लॉक कंटेनिंग लोकल वेरिएबल्स एंड सेम वे अगर इफ ब्लॉक में बनाया है या स्विच के केस के अंदर बनाया है अपने ऑब्जेक्ट, तो जैसे ही वो ब्लॉक फिनिश हो जाएगा उसका एग्जीक्यूशन, देन एट दैट मोमेंट डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. डिलीट ऑपरेटर इज कॉल्ड. डिलीट ऑपरेटर डिलीट करके अगर कोई ऑब्जेक्ट आप डिलीट करते हो तो डायनामिक वो क्या करता है, डिस्ट्रक्टर कॉल कर देता है. How destructors are different from a normal member function. Destructor have the same name as the class predecessed by the tilde, and destructors do not take any argument and do not return anything. Okay? क्लास का जो नाम है वही डिस्ट्रक्टर का नाम रहेगा और उसके आगे क्या लिखना है, टिल्ड साइन लिखना है. और डिस्ट्रक्टर कभी पैरामीटर भी नहीं लेता और कभी रिटर्न भी नहीं करता. तो एग्जांपल देखते हैं. Here I have created one class with a string. Same character star s and integer size as a private. And then यहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिया है with one parameter character star void display to display the value of character array and then tilde string that is known as destructor. तो ये previous example में जैसे हमने वो length लेके character array का मेमोरी स्लॉट असाइन किया था और वैल्यू कॉपी की थी, वो सब लॉजिक यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्टर में, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में. डिस्प्ले एंड देन डिस्ट्रक्टर. सो डिस्ट्रक्टर में क्या दिया है, सी आउट डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एंड डिलीट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट एस. स्क्वायर ब्रैकेट के साथ एस, तो वो क्या करेगा, एस को जो भी असाइन किया है वो तो वो रिमूव कर देगा. ठीक है, क्योंकि वो रन टाइम डिसाइड हुआ है तो उसको फ्री करना है तो ऐसे फ्री हो जाएगा. तो मैंने जैसे ऑब्जेक्ट बनाया तो void mean में जैसे ही रिटर्न 0 आ जाएगा ना, S1 करके ABC प्रिंट किया, ठीक है, रिटर्न जैसे ही 0 होता है, ओके, इट विल कॉल डिस्ट्रक्टर फॉर विच ऑब्जेक्ट, S1 ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली. यहाँ पे मैंने कहीं पे भी मीन में कॉल नहीं किया है डिस्ट्रक्टर, तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ऐसे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा. सो आई विल शो यू द डेमो. डिस्ट्रक्टर देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया वही है. देन कंस्ट्रक्टर with one parameter, then display function. डिस्ट्रक्टर देखो, डिस्ट्रक्टर सेम लिखते हैं लेकिन ये साइन आपको ऐड करना पड़ेगा. ओके, एंड देन जैसे ये स्टेटमेंट आएगा रिटर्न 0, इट विल कॉल द डिस्ट्रक्टर फॉर द S1 ऑब्जेक्ट एंड इट विल डिलीट the character array as well as it will display the message onto the console, that is destructor is called. So note down the questions regarding this video and thank you for watching this video.